Good morning. May we all stand in the presence of God. It is indeed a privilege for us to come in the presence of God yet again. हर सभी जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, and everybody who's come offline, we welcome you in Jesus' name. It is a great day to praise the Lord. Hallelujah. We all know that we're about to enter the Lord's Supper. We're about to take part in His body and in His blood this morning. And yesterday, even as I was meditating on the Word of God, जैसे मैं वचनों को पढ़ रहा था, I looked at the book of 2 Kings and in the story of the widow lady, where she goes to Elisha, वो Elisha के पास जाती है और वो कहती है that I don't have anything. One thing that attracts God's attention is emptiness. So I want to encourage you this morning that no matter what you have in your mind, no matter what is going on, or no matter आपके सोचों में क्या चल रहा है, अपने आप को खाली करके आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कीजिएगा. Because when you are empty, you give Him the chance to fill you. Hallelujah. Look at your life this morning. यदि आप अपने जीवन में खुद से भरे हुए हैं, खुद के अहम से भरे हुए हैं, and you are so full and you don't have place for anything else, it is very difficult for you to be filled with the presence of God this morning. So I encourage you that you empty yourself of everything that is not of God. Look at your life. If there is any ego, any anger, any unforgiveness that does not praise the name of God, आए अपने आप को हम खाली कर दें. Hallelujah. Come on, let us close our eyes this morning. Take a minute and pray for yourself and ask God that, God, even as I come in your presence, God, that even as I praise you and even as I lift you high, Lord Jesus Christ, I pray, God, that first you empty me this moment. Lord, I empty myself of everything that is not of you, Lord Jesus Christ. मैं खुद से अपने आप को खाली करता हूँ परमेश्वर. मैं मेरे सोच से अपने आप को खाली करता हूँ. यदि मैंने कोई पाप किया हुआ है परमेश्वर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ परमेश्वर. मैं पाप को लेकर आपकी उपस्थिति में नहीं प्रवेश कर सकता. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे अपने लहू से धो दीजिए, मुझे योग्य बनाइए. मैं आपके बलिदान के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह आपने खुद को खाली किया परमेश्वर. आज मैं भरा हुआ हूं क्योंकि आपने अपनी जान दी. आज मुझ में जीवन है परमेश्वर, क्योंकि आपने खुद को खाली किया परमेश्वर. मेरे सारे श्राप निकल गए हैं, मेरे सारे पाप धुल गए हैं परमेश्वर. Come on, if you're grateful this morning, I want you to lift up your voice and pray. उनसे कहिए, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूं परमेश्वर. एक खरी आत्मा और सच्चे मन से आपकी आराधना करना चाहता हूं. Oh God, we thank you for your presence. हम आपको आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं. पवित्र आत्मा, आगे की सभा के नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं. प्रार्थना करते हैं कि आप ताबा लीजिएगा मसीह यीशु के नाम से. Amen. Hallelujah. Come on, say hallelujah. Hallelujah. There is freedom in the presence of God. There is liberty in the presence of God. No matter what you and I may have come in the presence with, I can assure you, if you have a problem, Jesus has the solution. Hallelujah. The cross gave you the solution of your sins. If you are excited, come on, let us clap for the name of Jesus this morning. Come on, we're going to take some songs and we're going to worship Jesus. Come on, आए ताली बजाते हैं, मसीह यीशु की स्तुति करते हैं. It is a great day to praise God. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save. Come on, once again. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Come on, you sing. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts to pay. From the cross
cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. कहें, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान. मेरे साथ, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं. प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं. तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर. Come on, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान. आखिरी बार कहेंगे, प्रभु तेरा नाम है महान. Come on, ताली बजाकर उसकी महानता को दर्शाएं. Hallelujah. You know the word of God says, मत्ती 28 में कहता है कि जब वो स्त्री जो है उस they went to the place where Jesus was buried, the angel appeared and said, whom you're looking for is no more here, he is alive. Hallelujah. If you believe that Jesus is alive, sing this with us. वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है. Come on, ऊंची आवाज में, जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है. आपके जीवन में वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है. हमारा खुदा वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है. सुनिए, इतिहास की गवाही है. मृत्युंजय, मृत्युंजय हमें बचाता है. गाएं हम, यीशु जिंदा है. क्रूस खाली, कब्र भी, क्रूस खाली, कब्र भी, तूने लाई आनंद जिंदगी. चीखे हम, यीशु जिंदा है. क्या कोई चीख सकता है? जिंदा है. आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं. आनंद है, आनंद है, हूँ मैं बदला सदा के लिए है. आनंद है, आनंद है, मेरे पाप है. आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है. हूँ मैं बदला सदा के लिए. सुने, खड़े जब उस स्थान में, खड़े जब उस स्थान में, मैं स्वतंत्र तेरे सा. यीशु तू है मेरा, मैं तेरा, मैं तेरा. बेहद खुशी, बेहद चैन, बेहद खुशी, बेहद चैन. सारे दर्द आखिर थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है. आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं. आनंद है. कम ऑन, ऊंची आवाज में स्तुति करें. अपने हाथों को उठाकर कहें, है आनंद है, आनंद है, आनंद है, मैंने है. आनंद है, आनंद है, हूँ मैं बदला सदा के लिए. पाया नया जीवन है. हूँ मैं बदला सदा के लिए. हूँ मैं बदला सदा के लिए. मैंने पाया नया जीवन है.
हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमने नया जीवन आप में पाया है, कि आपने अपने जीवन को बलिदान दिया परमेश्वर, और हमने नया जीवन पाया है प्रभु। हमारे पाप का भार आपने उठाया परमेश्वर, हमारे श्राप का भार आपने उठाया परमेश्वर। जो पाप हमने किया था परमेश्वर आपने सहा और आपने हमें आजादी दी परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। शैतान के सारे चालों से आपने हमें छुड़ाया परमेश्वर, अतीत के हथकड़ियों को तोड़ा परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के श्राप को तोड़ा परमेश्वर, हमें नई जीवन दी आत्मिक में परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you God, we thank you, we thank you. There is nobody like you. आप जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का, तू प्यार का सागर। कम ऑन, आराधना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, अपने आवाज को ऊंचा उठाकर कहें, तू प्यार का रखा, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तू प्यार का सागर। कम ऑन, उस बलिदान को याद कीजिएगा जैसे इस गीत को गाते हैं आप। जब हम पाप ही में थे हमारे लिए उनका जान दिया गया, एंड उसी समय हमसे प्रेम गया। जब हमें पता नहीं था प्रेम क्या होता है, तब खुदा ने हमसे प्रेम किया, हमारे जीवन को बदल दिया, हमारे मन को बदल दिया। तेरे प्यार के साथ हम आपको जानना चाहते हैं परमेश्वर, हम आपके निकट आना चाहते हैं परमेश्वर। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना, come on sing it again, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार। Yes, Jesus. Yes, Jesus. Lord, we thank you, God, for the love which you have shown towards us, O God. प्रभु धन्यवाद जो प्रेम आपने हमारे प्रति दिखाया है। We thank you, God, that you have filled us with that love, O Lord. धन्यवाद प्रभु कि आपने उस प्रेम से हमें भरा है। And Lord, as the song says, O Lord, that
We want to be soaked with your love, O Lord. और जैसे गीत का परमेश्वर जैसे गीत की बोल है कि हम आप में पिता खोना चाहते हैं, आप में डूबना चाहते We want to हैं dive in you, God. पिता, हम आप में डूबना चाहते हैं प्रभु। Oh, this morning, this is our prayer, O Lord प्रभु ये Jesus. हमारी प्रार्थना है इस सवेरे के वक्त That, प्रभु। Lord, we want to dive in you, Lord. पिता हम आप में परमेश्वर We want to be डूबना filled चाहते with हैं, you, God. हम आपसे भरना चाहते हैं प्रभु। Oh, we pray this morning, O पिता God. इस सवेरे के वक्त हम प्रार्थना करते हैं, Spirit of God, fill us this morning. पवित्र आत्मा आप में भर दीजिए इस सवेरे के वक्त। People of God, can we lift up our voices? Can we परमेश्वर के pray? लोग आप क्या अपने आवाज को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं? 1 minute we'll take to pray. और एक क्षण हम लेंगे, We will lift up our voice and we will pray that, Lord, this morning I am here to be filled by you, God. और हम परमेश्वर की ओर दुहाई देते हुए कहेंगे, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ प्रभु तुझसे भरने के लिए। Lord, fill me with your word, O Lord Jesus. प्रभु मुझे आपके वचनों से भर दे प्रभु। Fill me with your spirit, O God. पिता आपकी आत्मा से मुझे Fill भर me with दीजिए your fire, O प्रभु, God. आपकी अग्नि से मुझे भर दीजिएगा Oh, प्रभु। fill me, O Lord Jesus. पिता इस सवेरे के वक्त मुझे भर दे प्रभु। Oh, I come before you as an empty vessel, O God. पिता आपके पास एक खाली पात्र बनकर आता But when हूँ I प्रभु। go out, O Lord, I want to go out be filled with you, God, Master. पिता लेकिन जब मैं जाऊंगा यहाँ से मैं भरा हुआ जाना चाहता हूँ Can we प्रभु। pray this morning? क्या हम अपनी आवाज को Can उठाकर we lift up प्रार्थना our कर voice सकते this morning हैं? and can we pray? क्या अपनी आवाज उठाकर हम प्रार्थना कर सकते Oh, हैं? this morning God is filling you. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपको भर रहे हैं। And filling comes from God this morning. और देखिए ये भरना जो है प्रभु की ओर से आता है। Oh, tell God that, Lord, I am here in your presence, standing in your presence, oh God. Fill me, O Lord. और प्रभु से कहे, प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं खड़ा हूँ, प्रभु तेरी उपस्थिति से तेरी आत्मा से मुझे भर दे प्रभु। Fill me with that fresh anointing, O God. उस ताज़े अभिषेक से मुझे भर दे प्रभु। Fill me, O Lord, with your grace, with your mercies, O God. पिता आपके अनुग्रह आपकी दया से मुझे भर दे प्रभु। Fill me with your compassion, O Lord, पिता Master. आपके पिता दया से मुझे भर दीजिए Come प्रभु। on, can we pray? Can we lift up our voices? Can we pray? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी आवाज को उठा सकते हैं? Oh, yes, God. Yes, Jesus. Oh, He is moving in our midst this और morning. प्रभु हमारे बीच में मंडरा रहे हैं। Something differently, God is moving in our midst this और morning. प्रभु हमारे बीच में मंडरा रहे हैं। Oh, yes, God. Ikera soko koroko kabasikera. Emanalalo sirani koro shikere. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, God. Oh, we thank you, God, this morning, O Lord. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं सवेरे के We वक्त thank you, प्रभु। Lord, for you are moving in our midst, O Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे बीच में मंडरा रहे हैं We प्रभु। thank you, God, that you desire to fill us, O God. पिता आपकी ये इच्छा है कि हम भरे रहे प्रभु। Oh, this morning we as well, O God, we pray and we desire to be filled by you, God. पिता हम भी इच्छुक हैं और आपसे भरा हुआ रहना चाहते हैं प्रभु। Lord, this morning as we have worshipped you, God. पिता इस सवेरे के वक्त जैसे हमने आपकी आराधना की है, Oh, we pray, O Lord Jesus, पिता हम प्रार्थना करते हैं, that, Lord, let our infilling be from you, God, Master. पिता हमारा भरना आप ही की ओर से हो जाए प्रभु। Lord, as we go ahead to hear from you, पिता जैसे हम आपकी ओर देखते हैं सुनने के लिए this morning, प्रभु। Lord, I pray that, Lord, you speak to your people, O God, पिता हम Jesus. प्रार्थना करते हैं आप आपके लोगों से बातें कीजिएगा, Transform your people, O God. आपके लोगों को परिवर्तित कीजिए Let your प्रभु। word manifest this morning, O Lord आपका Jesus. वचन परमेश्वर कार्यशील होने We give both दीजिएगा। ourselves as well in your hand. हम दोनों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। To us, speak through us, O God. पिता हमसे हमारे द्वारा बातें कीजिएगा। Inspire us, O God, पिता Master. आप हमें प्रेरित कीजिएगा We give प्रभु। you all the glory and honor, O Lord. सारा आदर महिमा गौरव In आपको Jesus' देते name we हैं। pray. यीशु मसीह के नाम In से हमने Jesus' प्रार्थना name we की। pray. यीशु मसीह के Can we नाम give से a हमने round of प्रार्थना applause for की। Lord Jesus Christ? Hallelujah. Please be seated. आप सभी लोग बैठ सकते हैं And thank God for this beautiful day. और धन्यवाद प्रभु का इस सुंदर दिन के लिए। And something beautiful, something marvelous is going to happen today. और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत प्रभु हमारे बीच में करने वाले Hallelujah. God हैं। is going to fill you. आमीन। प्रभु आपको मुझे भरने वाले हैं Amen. No one is going to be remain empty, but God is going to fill us in the name of Jesus. और हम में से कोई भी खाली नहीं लेकिन भरा हुआ प्रभु से भरा हुआ If you're जाएगा। somebody who believe it, can you shout a mighty amen for अगर that? आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप आमीन बोलिएगा। Hallelujah. This month God
God has been speaking to us with the theme tearing down strongholds. और इस महीने परमेश्वर हमसे बातें करते आए हैं कि कैसे हमें गढ़ों को दा देना है। Hallelujah. He has empowered us with the power to tear down every strongholds in our lives. और परमेश्वर ने हमें सक्षम किया है कि हम सारे गढ़ों को ढा दे। And from past 3 weeks we have been pondering upon how to tear down the strongholds in our lives. और पिछले 3 सप्ताह से हम प्रभु के वचन से सीखते आए हैं कैसे हमें गढ़ों को ढा देना है। And today we are about to partake in the Lord's Supper. और आज हम जो है प्रभु मेज में भाग लेने वाले हैं। And so I don't want to delay, but I want to quickly move on to the word of God which the Lord wants to speak. और मैं जो है जल्दी से प्रभु के वचन से जो प्रभु बातें करना चाहता है आपके सामने लाना चाहता हूँ। Hallelujah. From past 2 weeks we were pondering upon the life of the invalid man who was at the Bethesda pool and the widow woman who was, from the Second Kings chapter 4. और पिछले सप्ताह जो है हम उस व्यक्ति से देख रहे थे, उसके जीवन से सीख रहे थे जो 38 साल से वो बेथेस्दा के उस झरने के तले बैठा हुआ था। और पिछले सप्ताह हमने उस विधवा स्त्री की ओर से सीखा कि कैसे वो कर्ज से थी और फिर कर्ज मुक्त होती है। Hallelujah. This morning we are going to look at King Saul's life. और इस सवेरे के वक्त जो है हम राजा शाऊल के जिंदगी से सीखने वाले And we हैं learn some aspects from his life. और उसकी जिंदगी से कुछ बातों को हम We all सीखने know वाले that हैं। who King Saul was. और हम सभी लोग जानते हैं राजा शाऊल कौन था। He was the first king appointed for the people of Israel. और वो पहला राजा था जो नियुक्त किया गया था इजराइल राष्ट्र के लिए। Hallelujah. What a privilege he got to और become the first king of Israel. और कितना सौभाग्य की बात है कि उससे पहला राजा होकर नियुक्त किया गया इजराइल के And लिए। it's such a wonderful opportunity in his life to be the king of Israel. और उससे इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा सौभाग्य कि वो इजराइल का राजा कहलाया जाए। Hallelujah. When you read the Bible, अगर आप वचन को पढ़ते हैं he started with a very good note. और देखिए वो बहुत ही अच्छी शुरुआत करते हैं, However, his end was not that great. लेकिन उसका अंत अगर हम देखते हैं जीवन का अंत वो अच्छा नहीं It था। was one of the worst end in his life. और उसके जीवन काल का सबसे बदतर जो है What एक अंत says in था। 1 Samuel chapter 31 verse 4 that he committed suicide. और देखिए पहला शमूएल का किताब 31 अध्याय 4 वाक्य कहता है कि उसने जो है खुदकुशी कर दी। Hallelujah. He committed suicide. और उसने जो है खुदकुशी कर दी। This morning I'm telling you that the bondages or the strongholds have the power और देखिए आपको कह दूं इस सवेरे के वक्त ये जो गढ़ है उनके अंदर ऐसी क्षमता है to lead people into suicides. और देखिए इनमें क्षमता है कि वे उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर करता है। Somewhere Saul was in that bondage. Somewhere Saul was entangled with that strongholds. और कहीं ना कहीं ये शाऊल राजा जो है ये भी ऐसे ही गढ़ों से, ऐसे ही बाधाओं से बंधा हुआ था। And he was not able to tear it down. और वो जो है सक्षम नहीं था कि वो इसे ढा दे। And at the end he commits suicide. At the end he gives his own life. और देखिए अंत में जो है वो खुद की जान लेता है, वो खुदकुशी करता है। That's the power of strongholds. और यही जो है सामर्थ है ये गढ़ों के अंदर। You know why Saul was not able to tear down the strongholds? और आपको पता है क्यों जो है शाऊल राजा असफल रहा उस गढ़ों को ढा देने The के word of लिए। God says in 1 Samuel chapter 16 verse 14 that the spirit of the Lord departed from Saul. और देखिए पहला शमूएल का किताब 16वां अध्याय 14वां वाक्य पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है कि यहोवा की आत्मा जो है वो शाऊल राजा से निकल गई। Hallelujah. If you and me want to tear down that strongholds, it's very important for us that we need the Spirit of Lord with us, Spirit of God with us in our lives. और देखिए आपको मुझे ये समझने की जरूरत है कि अगर आप और मैं चाहते हैं इन गढ़ों को ढा देने के लिए तो आपको मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। We cannot tear down these strongholds with our own strength. और हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर We सकते need the strength which comes from the Spirit of God. और हमें वो ताकत की जरूरत है जो पवित्र आत्मा से आती है। And the word of God says that Spirit of God was departed from the life of Saul. और देखिए वचन कहता
देखा है कैसे शाऊल राजा में से जो है पवित्र आत्मा निकल गई। This morning, the question to us is और इस सवेरे के वक्त आपको मुझे प्रश्न ये है, the Spirit of Lord dwelling in us? क्या पवित्र आत्मा आप में मुझ में बसती है? I know we are about to partake into the Lord's Supper. आप और मैं जो है प्रभु मेज में भाग And लेने it's वाले very हैं important that we examine ourselves. और ये जरूरी है कि हम अपने आप को जांच लें How are we doing today? और हम किस तरह से बर्ताव Are करते we हैं। living a life like Saul lived? क्या हम शाऊल राजा की तरह हमारा जीवन है, You know where the Spirit of God departed from him, जहाँ पर उसकी जिंदगी से पवित्र आत्मा जो है निकल गए, or the Spirit of Lord is dwelling in us? या फिर पवित्र आत्मा आज हम में बसते हैं। If somewhere, if you're still struggling in that stronghold, और अगर आज कहीं ना कहीं हम उस गढ़ों से जूझते हैं, you गढ़ों know, में somewhere, जूझ रहे हैं, the measure of the Spirit is become less. और देखिए कहीं ना कहीं वो मात्रा जो पवित्र आत्मा की है वो कमतरता में आई है। If you want to tear down that stronghold in your life, अगर हम चाहते हैं कि हम वो गढ़ों को ढा दे, you know the measure of the Spirit should grow. और देखिए जरूरी है पवित्र आत्मा की मात्रा जो है वो हम में And बढ़ through जाए His strength and by His grace, we would be able to tear down the strongholds in our life in the name of Jesus. और परमेश्वर की सामर्थ से उनकी आत्मा से ही हम इन गढ़ों को ढा दे सकते Hallelujah. हैं। This morning we are going to look at how these strongholds were built in Saul's life. और देखिए इस सवेरे के वक्त हम चंद बातों को देखेंगे कि कैसे वो गढ़ जो है शाऊल राजा की जिंदगी में बन गए। And as we look into these things, how strongholds were built in Saul's life, we will examine our lives as well. और देखिए जैसे शाऊल राजा की जिंदगी से हम सीखने वाले हैं, हम हमारी जिंदगी को भी जांचेंगे कि क्या ये बातें हमारे जिंदगी में है। If somewhere, if those things are in our life, we need to change. और अगर कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में ये पाई जाती है तो हमें बदलने की आवश्यकता And we है need to avoid that things happening in our lives. और हमें जो है उसको नकारना है कि ये हमारी जिंदगी में ना हो। You know, when God decided to punish the Amalekites, और देखिए जब परमेश्वर ने निर्धारित किया कि वो अमलेकी लोगों को नाश करने वाले for हैं, whatever they had done to Israel, God decided that He will punish the Amalekites. और जो कुछ भी जो अमलेकी ने किया था उनको नाश करने के लिए प्रभु ने निर्णय किया। You know what did God say? He says in 1 Samuel chapter 15 verse 3. और परमेश्वर क्या कहते हैं, पहला शामुएल 15 अध्याय 3 You वाक्य। know, this is the command which comes from God. और देखिए यही वचन जो है प्रभु की ओर से आता है। Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. इसलिए अब तू जाकर अमेलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट या गधा, सबको मार डाल। Hallelujah. You know, these instructions came to Saul. और देखिए ये जो सूचना है ये परमेश्वर ने You know, शाऊल राजा के पास God लाई। gave Saul an instructions to go out and destroy the Amalekites. और देखिए परमेश्वर ने शाऊल राजा से कहा कि सारे अमलेकी को तुझे नाश करना You know, है he said that everything, और सब कुछ तुझे सत्यानाश the करना है। cattle, men, women, everything you have to destroy. चाहे भेड़ बकरी हो, मनुष्य हो, बच्चे हो, चाहे कुछ भी हो, The तुझे सत्यानाश instructions करना were है। very clear. और देखिए यहाँ पर सूचना बिल्कुल स्पष्ट है, But what did Saul did? लेकिन शाऊल राजा ने क्या You किया? know, verse 9 says that, but Saul and army spared Agag and the best of the sheep and cattle. और देखिए अगर 9वां वाक्य हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि कैसे शाऊल ने अच्छी अच्छी बातों और वो अगाग जो राजा था उसको बचा के रखा। Hallelujah. Saul disobeyed God. और देखिए यहाँ पर जो शाऊल राजा है प्रभु का अनादर करता है, You know, he did not adhere to the instructions which God has given to him. वो आज्ञा का पालन का उल्लंघन करता है और वो जो प्रभु ने कहा है उसको नहीं करता। He may have adhered to the 75% of instructions, but not 100% instructions he followed. और हो सकता है कि उसने जो है 75% जो है प्रभु की आज्ञा मानी, लेकिन 25% जो है उसने नहीं मानी। Hallelujah. But this is not the main concern today. लेकिन आज जो है ये जो बात नहीं है। The main concern which Saul had in his life और देखिए यहाँ पर शाऊल राजा से जो हमें सीखना है वो ये है
was he was carrying a mindset of ignorance. और वो जो है ऐसी मनोस्था को लेकर चल रहा था जो इग्नोरेंस है। And the first thing which we need to check our lives. और देखिए हमारी जिंदगी में आज अगर देखना है, Are we carrying a mindset of ignorance? क्या हमारे जिंदगी में आज जो है इग्नोरेंस या अज्ञानपन का जो मनोस्था हम लेकर चलते You know, हैं। when Saul approached, when Samuel approached Saul, और देखिए जब शमूएल जो है वो शाऊल राजा से मिलता and है, you see how Saul greets him. और देखिए कैसे वो उनका अभिवादन करता You है। know, verse 13 he says, और 13वां वाक्य इस प्रकार कहता "The है, Lord bless you. I have carried out the Lord's instructions." और देखिए 13 वाक्य कहता है, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उसे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। Hallelujah! How ignorant Saul was. और देखिए कितना अज्ञान जो है ये शाऊल राजा था। You know, he did not carry the instructions which God gave him. और जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी है वो तो की ही नहीं But है, still he says that I have followed the Lord. I have followed all the instructions from the God. लेकिन फिर भी वो इस बात को करता है, पुष्टि करता है कि मैंने जो भी प्रभु ने कहा वो किया है। And not only this one statement, और ना ही सिर्फ ये एक वाक्य, but if you read the entire conversation between Samuel and Saul, अगर आप जो है सारे वार्तालाप को जो शमूएल और शाऊल राजा में हुई थी, Saul was not convinced that he has done wrong. और वो जो है इस बात की पुष्टि नहीं करता या फिर इस बात को लेता नहीं है कि हाँ मैंने गलती की है। You know, many a times we carry such kind of mindset और with us. बहुत बार हम भी ऐसे मनोस्था को लेकर You चलते know, हैं, mindset of ignorance. We और- ignore things. और हम जो है अज्ञानता की मनोस्था को लेकर चलते हैं, हम अज्ञान हो जाते Many a हैं। times we are not aware what we are doing. और बहुत बार हम जो है इस बात का ज्ञान ही नहीं रखते कि क्या हम कर रहे Many a हैं। times we are ignorant that we are doing wrong in the sight of God. हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम चंद चीजों को करते हैं वो प्रभु के सामने सही नहीं है। You know, in our daily life, और हमारी दिनचर्या की people are जिंदगी में, ignorant of what they are doing. और देखिए लोग जो है मान से अज्ञान है कि वो क्या कर People रहे are हैं ignorant of what they are speaking. और क्या बोल रहे हैं, You know, people are ignorant of what they are seeing, what they are hearing. और क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। Many a times people say that it is happening in the flow. और देखिए बहुत बार हम इस तरह से बोलते हैं कि जिस तरह से है उस तरह से बहाव में हो रहा है। Oh, as Christians, we shouldn't be flowing. और देखिए एक क्रिस्ती होने के नाते हमें जो है एक बहाव की तरह बहना नहीं We है। should be mindful of what we are doing. We हम- should be mindful of what we are speaking. हम जो कुछ भी बोलते हैं करते हैं उसके बारे में सोच विचार कर करना है। When we carry that mindset of ignorance in our life, और देखिए जब हम इस मनोस्था को लेकर चलते हैं अज्ञानता की, we open the door for the enemy to come and build his और strongholds. हम शत्रु को अनुमति देते हैं कि वो हम पर आए और हमारे में उस गढ़ को बना दे। Saul was ignorant of what he has done. और देखिए यहाँ पर शाऊल राजा जो है अज्ञान था जो उसने किया था, And the enemy came and started building that और stronghold. यहाँ पर शत्रु आया और उस गढ़ को बनाने लगा। This morning the question is, Is- are you ignorant? इस सवेरे के वक्त प्रश्न ये है, क्या आप अज्ञान है? If you are, we need to change that mindset. अगर हम अज्ञान है तो हमें उस मनोस्था को छोड़ना We है। need to be mindful of what we are doing. जो कुछ भी हम करते हैं हम सोच विचार कर You know, करें। Ephesians chapter 5 verse 15 says, और एफिसियों का किताब 5:15 इस प्रकार be कहता very है, careful then how you live, not as unwise but as wise. और 5:15 में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं लेकिन बुद्धिमान होकर। Hallelujah. Be careful और वचन कहता है सावधान, of how you live. कैसे रहते हो You shouldn't be ignorant of how you are living. और कैसी चाल चलते हो उसको जो है बिना सतर्कता के ऐसे ही नहीं चलना Because if है। you are ignorant, you are opening a door for the enemy क्योंकि to अगर come in आप your life. अज्ञान है तो आप शत्रु के लिए द्वार को खोलते हैं कि वो आकर आपकी जिंदगी में You know, गढ़ so को बनाए। avoid carrying a mindset of ignorance. और इसलिए हमें जो है जो अज्ञानता की मनोस्था है उससे उसे नकारना है। You know, Saul had that mindset. Let not we have that kind of mindset in our lives. और शाऊल जैसे था वैसे हमारी जिंदगी में न रहे। Hallelujah. Turn to somebody and say that don't be ignorant. और आप आपके पड़ोसी से कहे कि आप अज्ञान न रहे। Hallelujah. The first thing is that we do not need to carry the mindset of ignorance.
ignorance. और देखिए पहली बात हम सीखते हैं कि हमें अज्ञानता की मनोस्था नहीं रखनी है। And a second thing, और दूसरी बात, when Samuel confronted Saul, और देखिए जब शामुएल जो है वो शाऊल राजा को मिलता है, Saul in his reply he answers. और देखिए ये शाऊल जो है वो शमूएल को बोलता है, What does Saul says? और क्या बोलता है वो? Verse 15. He says, the soldiers brought them from the Amalekites. They spared the best of the sheep and cattle to sacrifice to the Lord your God, but we totally destroyed the rest. और देखिए which one? 15. और 15वां वाक्य कहता है, शाऊल ने कहा वे तो अमलेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को जो तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है उससे बाकी रखा है, बाकी हमने सत्यानाश कर दिया And है। the question is, did God ask him to sacrifice? और यहाँ पर प्रश्न ये है, क्या परमेश्वर ने उसे कहा कि तू बलिदान दे? No, God did not ask him. नहीं, यहाँ पर प्रभु ने कहा ही नहीं। In a second of mindset which Saul carried, और देखिए दूसरा जो मनोस्था जो इस शाऊल राजा का था, he carried a mindset of inordinate. और उसका जो मनोस्था था वो इनऑर्डिनेट था। What does inordinate mean? और इनऑर्डिनेट मतलब क्या है? Inordinate carries an idea of something that is excessive. और देखिए ये जो असामान्य तरह से होता है, ये जो बहुत ज्यादा अति करने की मनोस्था होती Doing है, outside the boundaries. और जो आपकी सीमा है उससे अधिक आप करना, Not limited to the rules. और जो आपको रूल्स है, जो आपके रूल्स है उसके अधिक करना। If I say in other word, it refers to something outside of or instead of God. और देखिए अगर मैं अच्छे सामान्य भाषा से कहूँ तो परमेश्वर को छोड़ उसके बाहर करना। What does it happen in this instance? What did Saul said? और देखिए यहाँ पर इस जो जगह पर क्या हुआ, That they wanted to please God और वो कहता है कि हम चाहते थे कि हम प्रभु को by प्रसन्न करें, offering a sacrifice. कि प्रभु को हम बलिदान रूपी से चढ़ाए। But somewhere there was a hidden intentions in their life. लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है चुप्पी जो है एक मनोस्था उनकी बनी हुई That थी, they wanted to gain that excessive portions from the plunders which happened or they destroyed the Amalekites. और देखिए उनकी ये मनोस्था थी कि जो अधिकतर जो चीजें थी उसको जो है वो अपने लिए रख छोड़े, To gain more. और ताकि वो और भी ज्यादा To gain हासिल in करे, excess. और भी ज्यादा वो जो है Many अति a अधिक times- ये करे। many times we say that this is what the Lord wants to do. और देखिए बहुत बार हम कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि ये कार्य करे, Just for our own gain. और हमारे खुद के स्वार्थ के लिए। Hallelujah. That is a mindset of inordinate. और देखिए ये जो है अति अधिक करने वाली मनोस्था है। A mindset of inordinate open doors for acts like lust. और देखिए ये अधिक करने वाली मनोस्था जो है एक लालसा के समान वहां पर उपजाती It है, opened doors for acts like selfishness, और lies, और unfaithfulness. स्वार्थता और अक्षमता के लिए वहां पर झूठ के लिए वहां पर पनपता है। Hallelujah. And if these things are there in our life, और अगर ये बातें हमारे जिंदगी में है, it would lead us to a sinful life and towards death. और देखिए फिर ये बातें जो है ये हमें पाप की और मृत्यु की ओर लेकर जाती है। Today when people give priority to the worldly satisfaction, और देखिए आज जब दुनिया जो है दुनिया की बातों को या दुनियादारी पर ज्यादा उसको प्राथमिकता देती है, rather than giving preference to God, they are running towards that worldly satisfaction. और देखिए परमेश्वर को छोड़ दुनिया की और संतुष्टि के लिए भागते हैं, They are carrying a mindset of inordinate. और तब जो है लोग इस मनोस्था अधिक की मनोस्था को लेकर भागते There are हैं। people who can do anything और देखिए ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कर to सकते gain हैं, something more, और चंद बातों को हासिल to करने के gain लिए, something in excess. और चंद चीजों को अति आवश्यकता से They पाने forget के what the लिए, word of God says. और वे भूल जाते हैं कि प्रभु का वचन They क्या are ready कहता to है, say lies. और वे तैयार होते हैं झूठ बोलने के Why? लिए। Just to gain something excess, something in excess. और क्यों ऐसा होता है? ताकि वे जो है अधिक मात्रा से हासिल कर पाए। That's where the minds of inordinate is coming in picture. और देखिए यहाँ पर ही ये अधिक की मनोस्था वहां पर आती है। Why there is a lust of money. और देखिए क्यों जो है पैसे का लालच Why है, people are running after the
money to gain that money? और क्यों लोग आज जो है पैसे की लालसा करते हैं, उसकी लालच में है? Because they are carrying a mindset of inordinate. क्योंकि कहीं ना कहीं वे जो है अधिक की मनोस्था को लेकर चलते हैं। Hallelujah. Yes, God gave us a blessing that we would receive an overflowing measure. और देखिए निश्चय ही परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है कि हम जो है उमड़ता हुआ आशीष पाए, But that is coming from God. लेकिन वो परमेश्वर की ओर से आता है। Hallelujah. You do not need to go out and tell lies and do all these unfaithful things, disobedience, everything, whatever is there to gain that excess things. और देखिए आपको आवश्यकता नहीं है कि आप जाकर खुद से जो है झूठ बोले या फिर विश्वासघात करे या इत्यादि चीजों को करे जो प्रभु के सामने सही नहीं है। You know what did Gehazi did? और गहाजी ने क्या किया? Hallelujah. To earn that excess money or earn that excess, Clothing. excess money. और देखिए ये गहाजी जो है वो क्या करता है, अत्यधिक पैसा बटोरने के लिए He runs towards Naaman. और वो नामान की ओर भागता है। Without asking Elisha, he runs towards Naaman. और वो एलिया की ओर नहीं, लेकिन वो जो है नामान जो है वो उससे पूछता भी And when नहीं he है। approaches Naaman, what does he does? और देखिए एलिशा के बदले वो नामान की ओर जाता है और नामान की ओर भेंट करता है, तब क्या बोलता है? He tells lies. और वो वहां पर झूठ बोलता है। Hallelujah. He tells lies. और वो वहां पर झूठ बोलता Why? है। Because he is carrying a mindset of inordinate. और क्यों ऐसे होता है? क्योंकि वो अत्यधिक की मनोस्था वहां पर लेकर चलता And है। because they carried a mindset of inordinate. और देखिए क्योंकि ये लोगों ने जो है अत्यधिक की मनोस्था को No, लेकर they चला। ended miserably under the power of the stronghold. और देखिए हम देखते हैं ये दोनों जिंदगियां जो है बहुत ही बुरी तरह से उनका अंत हो गया। This morning we need to check our lives. और इस सवेरे के वक्त हमें अपनी जिंदगी को देखना Are है, we carrying that mindset of inordinate? क्या हम हमारे में अत्यधिक की मनोस्था Are लेकर we चलते running हैं? towards to gain that excess worldly satisfaction in क्या our life? हम जो है दुनिया के आरामदायक चीजों के पीछे भाग रहे हैं? If we are, अगर हाँ, we need to change and we need to avoid that mindset of being inordinate. और जरूरी है कि हम जो है ये अत्यधिक की मनोस्था जो गलत विचारों से आती है उसको हम निकाल दें। Turn to somebody and say, don't be inordinate. आप किसी आपके पड़ोसी से कहे कि आप अत्यधिकता में मत जाइएगा। Hallelujah. The first thing और पहली बात, that we do not need to carry a mindset of ignorance. और पहली बात हमें अज्ञानता की मनोस्था नहीं लेकर चलनी We है। do not need to carry a mindset of inordinate. दूसरा, हमें जो है अत्यधिकता की मनोस्था लेकर The नहीं third चलना है। type of mindset which Saul carried, और तीसरा जो है ये शाऊल राजा लेकर चलता है, this is something which is very common. और ये बहुत ही सामान्य रूप से है। Many people have this kind of mindset. और ये तरह का मनोस्था हर किसी के This पास is होता one है। kind of mindset where the enemy leads to work in people's life. और देखिए ये बहुत ही मुख्य जो है मनोस्था है जो शत्रु इन चीजों को कार्यरत करता है लोगों की This जिंदगी में। mindset is mindset of insecurity. और ये जो है असुरक्षा का मनोस्था। Saul came from a type which was the lowest of all. और देखिए ये शाऊल राजा उस गोत्र से आता है जो बहुत ही छोटा था। Somewhere he had that mindset of being inferior. और देखिए कहीं ना कहीं उसका ये मनोस्था था कि मैं बहुत ही छोटा हूँ। And later on in his life, he had that mindset of insecurity for losing the kingship. और देखिए कहीं ना कहीं आगे उसकी जिंदगी में असुरक्षा उसकी जिंदगी में पनप रहा था कि वो जो है अपना राजगद्दी खो देगा। We all know that David was winning the enemies. और हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे दाऊद राजा जो है वो जो है युद्धों को जीत रहा था। He was winning the heart of people. और वो जो है लोगों के हृदयों को भी जीत रहा And when था। people start praising David, और जब लोग जो है दाऊद की प्रशंसा when करते people हैं, start singing for David, और जब दाऊद की जो है उलाना करते हैं या फिर उसका जो है प्रशंसा करते हैं, Saul became insecure. और देखिए यहाँ पर शाऊल राजा जो है असुरक्षित And 1 महसूस Samuel करता chapter है। 18 verse 8 says, और पहला शमूएल का किताब 18वां अध्याय 18वां वाक्य, Saul was very angry. This refrain displeased him greatly. तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी।
Hallelujah. Mindset of insecurity will lead to anger. और देखिए ये असुरक्षा का मनोस्ता जो है क्रोध की ओर लेके जाता है। Mindset of insecurity leads to rift. Mindset of insecurity leads to jealousy. और देखिए ये असुरक्षा का मनोस्ता जो है जलन की ओर क्रोध की ओर लेके जाता है। Mindset of insecurity will steal your peace from your life, और- will steal that joy from your life. और देखिए ये असुरक्षा का मनोस्ता जो है आपकी जिंदगी से वो शांति वो आनंद को छीन लेता है। Not only it stole that peace from Saul's life, और देखिए ये शाऊल राजा में से सिर्फ वो जो है वो शांति निकल नहीं गई, but it resulted in performing a murderous act. लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि वो खुदकुशी के उस पद चिन्हों पर चला गया। Murderous act, not suicidal act. It resulted into a murderous act. और माफ कीजिएगा घात करने के उस जो है उस कतार में चला गया। Saul, when he became insecure, और देखिए जब शाऊल राजा जो है वो असुरक्षित महसूस करने लगा, he was after David's life. और वो जो है दाऊद के पीछे उसको He घात wanted करने to में kill फितरत में David. थे, और वो चाहता था कि वो दाऊद को मार गिराए। This morning you and me may not be after anybody's life, और हो सकता है इस सवेरे के वक्त आप और मैं किसी के पीछे घात but करने के maybe मनोस्था में नहीं performing है, an act out of our insecurity which is not pleasing in the sight of God. लेकिन हो सकता है हम ऐसे चंद कार्यों को करते हैं जो असुरक्षित के कारण जो है उभरता है, जो प्रभु के सामने प्रसन्नीय नहीं है। When you are at your workplace, when your subordinate is growing, do you feel insecure? और जब आपका कर्मचारी है जब वो बढ़ता है तो क्या आप असुरक्षित महसूस करते People हैं? feel insecure because they will take their place. और देखिए लोग जो है असुरक्षित महसूस करते हैं जब उनको लगता है कि कोई उनके जगह पर आने वाला When you है। do not have sufficient funds, when you do not have sufficient resource, do you feel insecure? जब आपके पास जो है उतना चाहिए जितना चाहिए उतना नहीं है, क्या कमतरता की अवस्था में आप असुरक्षित महसूस करते हैं? These are simple and basic insecurity which people have. और देखिए ये जो है सामान्य रूप से छोटी छोटी मात्रा में असुरक्षित की बातें हैं, But spending time on these insecurities, लेकिन इन बातों पर अपना ध्यान देना and acting on the evil thoughts which comes out of because of these insecurities, और इन चीजों पर ध्यान देते हुए बुरी बातों को या दुष्टता की बातों को पनपने देना, will open door for the enemy to come in your life and build that stronghold. और जब इसको पनपने देते हैं तो होने देते हैं कि शत्रु आ जाए और उन गढ़ों को वो बना दे। Verse 10 says, और 10वां वाक्य कहता है, in 1 Samuel chapter 18 verse 10 says, पहला शामूएल का किताब 18:10 में इस प्रकार as है, Saul became insecure, और जब शाऊल राजा जो है वो असुरक्षित महसूस किया an evil spirit forcefully came in his life. और वहां पर दुष्ट आत्मा जो है शाऊल राजा के जिंदगी पर हावी बोलता है। So we need to be very careful of being insecure. और इसलिए हमें जो है बहुत ही सावधानी बरतनी है कि हम असुरक्षित महसूस न करें। We do not need to carry a mindset of insecurity. और देखिए हमें असुरक्षा का मन लेकर नहीं, मनोस्था लेकर नहीं Instead चलना है। believe that our security in God. बजाय हमें ये बात का भरोसा करना है कि हमारा सुरक्षा जो है वो प्रभु में है। No one can take our place as it is established by God. और देखिए जो परमेश्वर ने हमें स्थापित किया है वो स्थापना जो प्रभु की ओर से कोई छीन नहीं सकता। Turn to somebody and say, don't be insecure. और आप आपके पड़ोसी से कहे कि आप असुरक्षित महसूस मत कीजिएगा। Encourage them by saying that your security is in God. और आपका सुरक्षा जो है प्रभु में है। Hallelujah. So this morning we need to look ourselves. और आज हमें अपने आप को देखना The है। three type of mindset और 3 प्रकार के मनोस्था, which can open the door for the enemy to come and build that stronghold in our lives. और देखिए ये 3 प्रकार की मनोस्था जो हमारी जिंदगी में दुष्ट को आने देती है और गढ़ों को बांधने देती है। और देखिए ये शाऊल राजा इन मनोस्था को लेकर चल रहा And था he ended his life और miserably. उसने अपनी जिंदगी का विनाश कर दिया। God does not want us to end our life miserably. और देखिए प्रभु नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी विनाश हो जाए। Hallelujah. He has kept a beautiful place for us. प्रभु ने आपके मेरे लिए बहुत ही सुंदर जगह रखी The है। word of God says that Jesus has gone to prepare a mansion for you. और देखिए यीशु का वचन कहता है वो हमारे लिए घर मकान बनाने के लिए गए हैं। If you want to enter in that mansion, if you want to enter with Jesus Christ, अगर आप चाहते हैं कि आप उस घर में उस यीशु के साथ प्रवेश we करें need to avoid these mindsets. और इन
इन मनोस्ता को हमें खदेड़ना And when है। we avoid these और mindsets, जब आप इन मनोस्ता को खदेड़ते हैं, every strongholds would be automatically broken in our और lives. फिर सारे गढ़ जो है वो टूट जाएंगे It यीशु will के be नाम से, already tore down in our lives. और वो फिर वहां पर होते ही नहीं है। Hallelujah. So we need to check, we need to understand what kind of mindset we are carrying. और इसलिए हमें अपने आप को जांचना है किस प्रकार का मनोस्ता को लेकर हम चलते So हैं। this morning, if we are ready, can we all stand on our feet? इस सवेरे के वक्त अगर आप तैयार है, क्या आप खड़े हो सकते हैं? Let's assess ourselves, let's examine ourselves. आइए अपने आप को हम जांचते हैं, अपनी जिंदगियों को हम देखते हैं, What kind of mindset are we carrying today? और किस प्रकार का मनोस्ता को लेकर हम चलते These are हैं। the three types of mindset. और ये 3 प्रकार की मनोस्ता है। Being ignorant. और अनजान रहना। It's very important that we shouldn't be ignorant of what we are doing. और देखिए, हमें अनजान नहीं रहना है जो कुछ भी हम करते हैं उसके But प्रति। somewhere, if we are ignorant, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अज्ञानता को दिखा रहे oh, हैं, this morning, can we come before Lord? इस सवेरे के वक्त क्या हम जो है प्रभु के Can we सामने आ tell the सकते Lord, हैं? Lord, I have been ignorant of what I am doing, oh God. और प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे माफ कीजिएगा, मैं अज्ञान था जो कुछ भी मैं कर रहा Oh, था। this morning, I come with a heart of repentance, oh God. प्रभु इस सवेरे के वक्त मैं पश्चाताप के हृदय के साथ आता हूँ प्रभु। Help me so I can be mindful of what I am doing. प्रभु ताकि मैं प्रभु सावधानी बरतूं जो कुछ भी मैं करता Can we हूँ। pray this morning? क्या हम प्रार्थना कर Can we सकते lift हैं? up our voices this morning? क्या हम अपनी आवाज को उठा Can we सकते tell हैं? the Lord? Can we tell the Lord क्या हम प्रभु से कह सकते हैं? that Lord, fill me with your wisdom, with your understanding, oh God. प्रभु आप मुझे आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान से I भरिएगा don't want to प्रभु। be unaware of the things which is happening in my life. पिता, जो मेरी जिंदगी में हो रहा है उस हरकतों से मैं अनजान नहीं रहना चाहता। Oh yes, God. Oh, if you're carrying a mindset of inordinate, और अगर आप जो है आपके जिंदगी में अत्यधिकता के मनोस्ता को लेकर चलते tell the हैं, Lord that, Lord, I don't want to carry this mindset, oh Lord Jesus. परमेश्वर से कहे प्रभु मैं नहीं चाहता ऐसी मनोस्ता को लेकर If चलूं। somewhere you are running towards that worldly satisfaction in your अगर life, कहीं ना कहीं आप जो है दुनिया के आरामदायक बातों में अपने मन को लगा रहे turn to हैं, God this morning. इस सवेरे के वक्त आप प्रभु की ओर अपने ध्यान को Turn to लगाएं। God this morning. आप अपने ध्यान को प्रभु की ओर Oh लगाएं। yes, God. Tell the Lord that, Lord, here I am standing in your presence, oh प्रभु God, से कहे प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में खड़ा हूँ desiring प्रभु। from you, God, प्रभु Master, आपसे इच्छा रखते हुए प्रभु, looking at you, God, प्रभु आपकी ओर देखता हुआ प्रभु, focusing on the heavenly things, oh God, प्रभु Master. आपकी और आपकी स्वर्ग की ओर ध्यान देते हुए प्रभु। Oh, fill me, oh Lord और Jesus. परमेश्वर से कहे प्रभु तू मुझे भर दे। Come on, can we pray? Can we lift up our voices? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपने आवाज को उठा Lift सकते up your हैं? voices. Lift up your voices this morning. अपने आवाज को आप उठाइएगा। And Paul writes, says that I am content with what I have. और पौलुस कहता है जो कुछ भी मेरे पास है उससे मैं संतुष्ट हूँ। Oh, this morning, और tell इस the Lord, सवेरे that, के- Lord, whatever you provide to me, oh God, और प्रभु से कहे इस सवेरे के वक्त प्रभु जो कुछ तू मुझे देता है प्रभु, Lord, I am happy with that, oh Lord प्रभु Jesus. मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ प्रभु। Oh, I don't want to use my own brains to gain that in excessive things, oh Lord पिता Master. मैं अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहता उन चीजों को, अधिक चीजों को बटोरने के लिए But this प्रभु, morning I depend upon you, oh Lord. लेकिन इस सवेरे के वक्त मैं आप पर निर्भर हूँ Come प्रभु। on, can we pray? Can we lift up our voices? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपने आवाज को उठा सकते If you're हैं? living in insecurity, अगर आप असुरक्षित महसूस करते हैं, oh, I'm telling you, you are secure in God. आपसे मैं कह दूं कि आप प्रभु में सुरक्षित हैं। Oh, tell the Lord that, Lord, remove that mindset of insecurity from my life, और oh प्रभु Lord. से कहे प्रभु ये असुरक्षा की बातों को मुझसे निकाल दे प्रभु। Oh, lift up your voices this morning. आइए अपने आवाज को आप उठाइएगा Pray this morning. और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। Saul ended his life miserably. और देखिए शाऊल जो है अपनी जिंदगी को खो He दिया committed suicide. और उसने जो है खुदकुशी कर दी। Suicide is not a portion of God's people. आमीन। और खुदकुशी जो है प्रभु के लोगों का भाग नहीं है। If somewhere, if that thought is coming in your अगर mind, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में, आपके जहन में ये बात आ oh, रही है submit that thought under God, in the captivity of Jesus और Christ. आप उस सोच को परमेश्वर के अधीनता में लेके I'm आइएगा। telling you, give that thing in the hand of Jesus. और मैं आपसे कहता हूँ आप यीशु के हाथ में वो सोच को Oh, दीजिएगा remove that thought of suicide. और आप जो है उस खुदकुशी के उस this morning चीज को we निकाल pray, oh दीजिएगा God, और आप प्रार्थना कीजिएगा That every suicidal thoughts, oh God, और आप प्रभु से कहिएगा हर एक पिता खुदकुशी
खुदकुशी every वाली बातें suicidal प्रभु, instincts, oh God, और Master. हर एक खुदकुशी की उस पिता हरकत प्रभु, God, we wipe out those thoughts from your people's पिता life आपके in the name लोगों of से Jesus. परमेश्वर उन हरकतों को हम यीशु के नाम से पोंछ देते Your हैं word प्रभु। says you have come to give life and life in abundance. प्रभु आपने कहा है कि आप हमें जीवन और बहुतायत का जीवन Lord, देने I आए pray over हैं। their life, O पिता Lord. हम प्रार्थना करते हैं आपके लोगों And के I लिए, pray for life in abundance over their life, O पिता Lord Jesus. आपके लोगों के लिए बहुतायत का जीवन घोषणा करता हूँ प्रभु। Oh, we give you all the glory, O Lord पिता Master. सारा सरादर मैं आपको देता हूँ। Thank you, God, for this morning, O Lord पिता Jesus. धन्यवाद इस सवेरे के लिए We प्रभु। bless your name, O God. हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने In प्रार्थना Jesus' की। name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने Can प्रार्थना we give a की round of applause for Lord Jesus कि हम Christ? प्रभु के लिए जोरदार ताली झेल सकते हैं। Hallelujah. And on this morning, the Lord wants to speak to us. The Lord has spoken to us. और देखिए इस सवेरे के वक्त प्रभु ने आपसे मुझसे बातें की है, You know that we do not need to carry a mindset of being ignorant. और हमें जो है अज्ञानता के मनोस्था को लेकर नहीं चलना Hallelujah. है, Let's not be ignorant in our giving as well. और हमारे देने में भी हम अज्ञानता को न रखें। Hallelujah. The word of God says that give with a cheerful heart. और प्रभु का वचन कहता है जब हम देते हैं तो हर्षित हृदय के साथ दे, And when you will give with a cheerful heart, God will bless you. और जब हम हर्षित हृदय के साथ देते हैं तो प्रभु आपको आशीष देगा। And so this morning, as you prepare yourself, और इस सवेरे के वक्त जैसे आप अपनी तैयारी करते as हैं, you have prepared your offering, और जैसे आपने आपके भेंट को तैयार किया as you है, have prepared your tithes, आपके दशमांश को आपने तैयार किया है, prepare your heart as अपने well. हृदय को भी आप तैयार कीजिएगा। And the white envelopes out there, which you can use it for your tithes. और सफेद लिफाफा जो है आपके दशमांश के लिए आप इस्तेमाल The कर brown सकते हैं, envelope is for Sharon. और जो ब्राउन है वो आप जो है शरण के लिए And if इस्तेमाल कर anybody सकते हैं। wants to give a special offering or towards the rent, they can use the white envelope and they can write it down. और अगर कोई जो है रेंट की तरफ या फिर कोई स्पेशल ऑफरिंग है तो आप वो जो है सफेद एनवलप ले सकते हैं। Hallelujah. So let's thank God. Let's sing a song and let's rejoice and give. आइए हम प्रभु का गीत गाते हैं और प्रभु को हर्षित होकर देते हैं। जय जयकार करा, जय जयकार करा, मेरा बापा सा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, मेरा बापा सा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, मेरा बापा सा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, मेरा बापा सा जय जयकार। जय जयकार करा, यीशु नामाचा जय जयकार, यीशु नामाचा जय जयकार करा, मोठीचा का यीशु नामाचा जय जयकार करा, मन हात मोठा करेंगे यीशु नामाचा जय जय, मन मेरे साथ यीशु नामाचा जय जय, जय जयकार करा, जय जयकार Hallelujah. Let's all stretch forth our hands towards the offering. आइए भेंट की ओर हमारे हाथों को बढ़ाते हैं। Father, we give you all the glory and honor, O प्रभु God. सारा सरादर हम आपको देते हैं। Thank you, God, that Lord, you enabled us so that we can give, O Lord Master. प्रभु धन्यवाद आपने हमें क्षमता दी कि हम आपको दे पाए It is प्रभु। not by our own strength, O God, प्रभु ये हमारी ताकत से but नहीं by है your प्रभु। grace, O God, you have enabled us so that we can earn and we can give it to Lord Master. प्रभु ये आपके अनुग्रह आपकी दया से है कि हम पिता दे पाए। This morning I pray, O Lord Jesus, इस and give समय- your people in your hand. इस सवेरे के वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों के लिए प्रभु, Lord, as they have given with a cheerful heart, O और God, जैसे उन्होंने हर्षित हृदय से आपको दिया है Lord, प्रभु, you bless them bountifully in the name of Jesus. पिता बहुत तायत से आप उन्हें आशीषित कीजिएगा Lord, प्रभु। evidently, O Lord Master, you
bless them, O Lord. बहुतायत से आप उन्हें आशीषित Let them कीजिएगा never lack प्रभु, anything in their lives, O Lord. कोई Master. बात की कमतरता उन्हें न हो And प्रभु। we break every financial strongholds from their lives in the name of Jesus, O पिता Lord. सारी आर्थिक क्षेत्र में गढ़ों को हम तोड़ देते हैं यीशु के नाम से। God, we pray, Lord, as this money has come in your kingdom, O God. पिता जैसे ये पैसा आपके राज्य में आया है प्रभु, We pray and we bless it, O Lord Jesus. पिता हम उसे आशीषित करते हैं। Lord, multiply it, O God. पिता आप उसे बहुगुणित And let कीजिएगा, it be used for your kingdom in the name of Jesus, O आपके God. राज के बढ़त के लिए इसका We उपयोग give होने you all पाए। the glory and honor, O God. सारा सरादर आपको देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. आमीन। Please be seated. आप सभी लोग बैठ सकते हैं And I just want to go quickly through the announcements. और जल्दी से हम सूचना को बताते हैं। I know the regular announcements will remain the same. और जैसे हमारी सामान्य सूचना है वैसे I ही just want to रहेगी, quickly move on to the special announcements. और विशेष सूचना मैं आपको बताता हूँ। And we are about to start the baptism class और- on first week of December. और पहले सप्ताह दिसंबर के हम सोच रहे हैं कि हम बपतिस्मा क्लास Those who शुरुआत have करें, provided their names, those who have registered their names, we would connect with them और जिन्होंने आपका नाम हमें दिया है उनके साथ हम भेंट and करेंगे, we will tell them the date and the time and the venue that when we can meet and when we can have the classes. और हम उनको समय, स्थान और जगह जो है, तारीख, दिनांक जो है बताएंगे कहाँ पे कब कैसे मिलना है। But still, if anybody wants to provide or when anybody wants to inspire us to be baptized, please reach out to us. अगर अब भी जो है आप में से कोई है जिनको अब बपतिस्मा के लिए नाम देना है तो आप हमसे भेंट कर The सकते हैं। second thing is that we have our workers retreat coming. और दूसरी बात ये है कि हमारा रिट्रीट मीटिंग होने वाला So I है, would request all the workers, the ministers to register themselves as quickly as possible. और इसलिए मैं विनती करता हूँ सारे कार्यकर्ताओं से कि अपने नाम का आप जो है The नोन retreat कीजिए। is on 27, 28 and 29 December. और 27, 28, 29 दिसंबर को है, And the registration amount is 1200. और 1200 रुपया जो है पर पर्सन का So है। please reach out to us and register yourself. इसलिए आप हमसे भेंट कीजिएगा और आपका नाम नोन कीजिएगा। And the ones who are watching us online, और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, if you want to be with us and partake us with the Lord's Supper, अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़े और आप प्रभु भेंट में बैठना चाहते हैं, you can join us on Zoom at 11:45. और आप जो है 11:15 बजे जो है जूम पर आप We will लॉग इन कर have, सकते have हैं, our online communion service as well. और हमारा ऑनलाइन कम्युनियन सर्विस भी होगा। So if you can all rise on our feet अगर आप सभी लोग जो है खड़े हो as सकते we हैं, move on to the final prayer. जैसे हम आखिर की प्रार्थना करते हैं, Let's close our eyes. आइए अपनी आंखों को मूंद लेते हैं। God, we thank you, God. We bless your name. प्रभु हम आपको धन्यवाद We देते give हैं, you all आपको the सराहते glory and honor, हैं, O God. सारा सरादर हम आपको This देते morning we हैं। pray, O Lord पिता Jesus, इस सवेरे के वक्त हम प्रार्थना as you have करते हैं, spoken to us, O God. प्रभु जैसे आपने हमसे बातें की Lord, है, help us so that we can carry a right mindset, O God. पिता Master. हमारी सहायता कर कि हम सही मनोस्ता को ले A चले। mindset which would lead us to life and life in abundance, O पिता God. ऐसी मनोस्ता परमेश्वर जो जीवन और बहुतायत के जीवन Lord, की ओर as your लेकर son and जाए। servant, I pray and I give your people in your hand. पिता आपका बेटा आपका सेवक होने के नाते लोगों के लिए प्रार्थना Lord, करता bless हूँ, them with all the heavenly things, O God. सारे स्वर्गीय आशीषों से आप And नवाजिएगा। as the heavenly things come, let the material things follow in the name of Jesus. और जैसे पिता स्वर्गीय आशीषों को नवाजते हैं, बाकी अन्य आशीषों को भी God, नवाजिएगा। I pray और मैं प्रार्थना करता that, हूँ, Lord, you bless them, O Lord, let there be no lack in their lives. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कोई कमतरता उनमें न हो The प्रभु, divine health be their portion, O God. दैविक स्वास्थ्य उनका भाग होने पाए। Let they be a channel of blessings for many in the name of Jesus. पिता आशीषों का स्रोत इन्हें बनाइएगा Give you प्रभु, all the glory and honor, O God. सारा सरादर आपको देते हैं। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की, Amen. Let's share the आमेन। grace. आइए अनुग्रह को बांटते हैं। The grace of our Lord Jesus यीशु Christ, मसीह का the अनुग्रह, love of God, पिता का and the प्रेम, sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ बनी रहे now and forevermore. अब और अनंत काल। Amen. आमेन। Surely, निश्चय ही goodness and mercy shall भलाई follow और us करुणा all the days of our life, हमारा अनुसरण and करेगी, we shall dwell in the house of God और हम प्रभु के धाम में निवास करेंगे forever and ever. अब और अनंत काल। Amen. आमेन। Amen. God bless you. गॉड ब्लेस यू।